Okay. Hello, Natik. How are you? I'm fine, Fine. sir. How are you? Yes, I am also good. So why you are not joining the class every day, Natik? Sometime not joining. सर मेरा पहले अभी थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था तो उसकी वजह से Okay. मैं फिर अभी 1-2 दिन बाहर भी गया था दिखाने के लिए तो अभी Now you थोड़ा are ठीक fine. हुआ। हाँ अभी मैं बोल पा रहा हूँ, पहले बोल भी नहीं पा रहा, इसलिए मेरे को चेकअप करा। Okay. Okay. Fine. Fine. So how you are liking the subject? कैसा मतलब लग रहा है? अकाउंट समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है अच्छे से। Good. Good morning, students. All of you. Let's start the class. From today, we are going to start with the new chapter. New unit. We are going to start with the new unit. That is unit number 2, accounting process. Accounting process. This unit we are going to start. So in this unit, the first chapter is recording of transaction. Recording of transaction is the first chapter in this. What is going to cover means if we talk about this reference, है ना, अगर अपन reference की बात करते हैं तो references है आपका chapter number 5, chapter number 6, chapter 7, 8, 9. सर Yes. सर सर Yes, मेरे को please. दिखाई Yes. नहीं दे रहा सर स्क्रीन में। Sorry, is it not visible? यस सर। Screen is not visible, Kailash? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। और बाकी लोगों को नमन, नातिक, is it visible to you people? सर मैं वापस से रीजॉइन करूं? हाँ. So this third chapter we are going to start, students. So in this first we are going to discuss about the means as per the NCERT content, the source documents and the voucher we are going to start. So let's discuss about what is source documents and the voucher. Is it visible? So this is one PPT prepared by one of the teacher I have got on some WhatsApp somewhere. So this the credit goes to Mr. Ajit Kanthi sir of Kerala. That's not prepared by me. Recording of transactions. So let's discuss, dear students. जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया. कैलाश, अब आप सुन पा रहे हो बेटा? Is it audible? कैलाश has not joined with the audio. चलिए, कोई बात नहीं. Students, we are starting with the chapter number 3, that is recording of transaction. This is the first chapter in unit 2, that is accounting process. What covers this accounting equations, GST, journal entry and ledger. ये सारी चीजें इस चैप्टर में है, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एज पर द एनसीईआरटी कंटेंट. द फर्स्ट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट. तो आज हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट. सो बिफोर गोइंग थ्रू दिस सोर्स डॉक्यूमेंट, है ना, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने से पहले हमने ये समझना जरूरी है कि ये व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, है ना, व्हाट इज द नीड ऑफ इट.
So for this purpose, I wanted to give you the reference of one accounting principle. One accounting principle, that is, let's say, is objectivity principle or verifiability principle. If you remember, can you tell me what does it mean? Objectivity principle or verifiability principle. Can anyone tell me? In previous chapter we have discussed. Try करो थोड़ा सा बताने की क्या है ये. Anyone? This one. This we are talking about. Verifiability, objectivity. So this I'm reading again for you people. So just try to understand this. है ना, जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो आपको इसके बेसिस पर प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा. So try to understand it. Now what does it mean, students? Let's see. Verifiability objective concept. The verifiable objective concepts hold that accounting should be free from personal bias. The verifiable objective concept hold that accounting should be free from personal bias. Measurement that are based on the verifiable evidences are regarded as objective. It means all the accounting transactions should be evidence and supported by business document. These supporting documents are cash memo, invoice, sales, bills, etc. And they provide the basis of accounting and audit. Are you able to understand, students, this? जो भी हम लोगों ने पढ़ा, क्या ये आपको समझ में आया? Speak up. Who are there? Kailash, Krishna, Natik, Naman, Sabrit. Is this clear? Ki what is objectivity principle or verifiable principle? Sabrit, can you Yes. hear me? Yes. है ना, तो कहने का मतलब यही है कि अकाउंट्स में आप जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड, इट मस्ट बी वेरीफाइड. इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय सम सोर्स डॉक्यूमेंट. है ना, दिस प्रिंसिपल टॉक अबाउट दिस ओनली. ये जो प्रिंसिपल बात करता है वो इसी के बारे में बात करता है कि हर चीज एविडेंस के बेसिस पर होगी. ऐसा नहीं होगा कि कोई ट्रांजैक्शन बस रिकॉर्ड कर दिया गया या फिर इस ट्रांजैक्शन को बस केवल रिकॉर्ड भर कर लिया गया. नो, इट शुड बी वेरीफाइड. इट शुड बी वेरीफाइड बाय सम सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट, व्हाट डज इट मीन? कि अगर हमने कहा है कि हमने 10,000 रुपीज वी हैव पेड टू राम, तो हमारे पास में उसका एक एविडेंस होना चाहिए जिसके ऊपर राम का रिसीविंग हो, उसके सिग्नेचर हो, जिससे ये प्रूव हो सके कि राम को हमने 10,000 का पेमेंट किया है. ठीक है. इफ यू आर सेइंग कि वी हैव परचेज दिस मशीन फॉर ₹5 लाख, तो हमारे पास में उस मशीन का 5 लाख रुपीज का बिल होना चाहिए. ठीक है. अगर हमने कहा कि भाई हमें यहाँ से अहमदाबाद गुड्स सप्लाई करना था और उसके लिए हमने हमारी जो डिलीवरी वेन भेजी उसमें हमने लेट्स से 5,000 रुपीज का पेट्रोल फिलअप करवाया, तो वो 5,000 रुपीज जो पेट्रोल एक्सपेंसेस हैं उसका कुछ एविडेंस होना चाहिए. है ना? There should be some evidences for all the transactions, whether it is a transaction of ₹1 or a transaction of ₹1 lakh. So ये जो means what we are just talking about, है ना? I'm unable to mark it, but मैं verifiable objectivity को सर्कल करना चाह रहा था कि verifiable objectivity concept is talk about verifying all the transaction with some documentary proof or evidences. कि कुछ ऐसे एविडेंसेस हो, कुछ ऐसे प्रूफ हो, कुछ ऐसे सबूत और गवाह हो. है ना? गवाह तो नहीं, हम यहाँ पर सबूतों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कि जिनसे कि when at the end of the financial year, when we are going to get our accounts audited, जब कोई सीए या कोई टैक्स अथॉरिटी
या फिर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी अगर हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करे, चेक करे, तो इस बात की श्योरिटी हो कि यस एवरीथिंग इज रिटन इन द बुक ऑफ अकाउंट इज करेक्ट एंड एक्यूरेट। क्या ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? आपके रेफरेंस में ये है चैप्टर नंबर 7 जो हम अभी पढ़ रहे हैं। आपके रेफरेंस बुक में चैप्टर नंबर 7 है ना, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशंस ऑफ वाउचर। और एनसीईआरटी अगर आपके पास में है तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, है ना। रेफरेंस अगर ग्रेवाल का है तो उसमें है चैप्टर नंबर 7। सो ये पूरा चैप्टर इसी के बेसिस पर है स्टूडेंट्स, है ना। दिस होल चैप्टर, या चैप्टर के बजाय हम उसको टॉपिक बोलते हैं, तो होल टॉपिक इज अबाउट दिस ओनली। तो चलिए यहाँ पर जो मिस्टर अजीत सर हैं, उन्होंने एक अच्छा पीपीटी पीडीएफ बना रखा है, तो उसके थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं तो चीजें थोड़ी सी और इजी हो जाएंगी। Let's say students, so we are talking about the recording of transaction and identifying the transaction source document and recording of transaction in journal. So journal, so we would not be talking about, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल, here we are just talking about source documents, ना, source document. What is the source document and how these are the evidences? So the documents on the basis, please mind this and listen it very carefully. The source document on basis of which transactions are recorded in the book of accounts are called source documents or voucher. ठीक है, जिनके बेसिस पर ये पूरा रिकॉर्ड किया जाता है, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ओके, नाउ it is the original transaction and it initiate the accounting process. So source document is what? The evidences. अब ये evidences किस फॉर्म में हो सकते हैं? It can be in the different form, है ना। ये जैसे देखिए यहाँ पर एक एविडेंस बताया है कि this is about the case receipts. What information it contain? Company's name, address, if it is there तो logo, case receipts number, case received from, किससे रुपए मिले हैं, किस डेट को मिले हैं, who has received, in what form it is received, whether it is in form of cash or in form of check or in form of digital cash or Paytm, Google Pay or something like, who has received this amount. This everything is to be recorded properly in the document what is called the source document or voucher. ठीक है, see students, we are not going to make it very complicated, लेकिन हमने केवल इतना समझना है कि हम when we are just writing anything in the book of account, जब हम हमारी बुक्स में कुछ भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जब हमारी बुक में हम कुछ भी रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उसके लिए हमारे पास में एविडेंसेस हो। अब काफी जगह पर तो हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं, लेकिन काफी जगह पर एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं। तो जहां पर एविडेंसेस नहीं मिल पाते हैं वहां पर हमने एविडेंसेस बनाने होते हैं, हमें वहां पर एविडेंसेस बनाने पड़ते हैं इन द सेंस वो उनके वाउचर्स फ्रेम करने पड़ते हैं, उनके वाउचर्स बनाने होते हैं, है ना, जिनको कि हम बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स, जिनके बेसिस पर एंट्रीज या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। अब आप अगर मेडिकल स्टोर पे गए और आपने मेडिसिन परचेस की एंड यू हैव आस्क्ड फॉर द बिल, देन डेफिनेटली यू विल गेट। आप किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में गए जस्ट टू हैव लंच और डिनर, देन डेफिनेटली एट द एंड यू विल गेट बिल। लेकिन यू आर जस्ट ड्राइविंग टूवर्ड मांडवी और आपने वहां पर रास्ते में सोचा कि चलो ये कौन से बाबा का ढाबा आया है, तो चलो यहाँ पर बैठ करके खाना खा लेते हैं, या फिर जो कुछ भी है। सो छोटी सी टपरी है, ढाबा है, समथिंग लाइक, और वहां पर यू हैड समथिंग, सो यू विल नॉट गेट बिल ओवर देयर। ठीक है, सपोज आप किसी बिजनेस ट्रिप पर थे, अब वहां पर आपको कोई ऐसे बिल या ट्रांजैक्शंस नहीं, बिल या एविडेंसेस या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, देन व्हाट यू विल हैव टू डू, you will have to prepare, आपको बनाना पड़ेगा, है ना। you will have to prepare कि to whom you have paid, what amount you have paid, on which date you have paid, for what purpose you have paid, whether you have paid in cash or you have paid in bank, ये सारे कुछ आपको उसमें डिटेल्स देनी पड़ेगी। ठीक है ना, like this here, है ना, here it is, you can see,
कि नेम ऑफ द कंपनी, वाउचर नंबर, कौन से अकाउंट को डेबिट किया, कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है आपने, नरेशन, रेंट पेड बाय कैश, है ना, who authorize it, who prepare it, what is the date of transaction, this everything would be there. So जिस भी पर्पज से आपने that amount you have spent. ठीक है? So all in all, the simple thing about this chapter, I mean this topic, that is a source document, is what? That having the evidences, either ready-made or to be prepared. आपके पास में हर ट्रांजैक्शन के एविडेंसेस होना चाहिए, या तो वो आपको रेडीमेड मिल रहे हैं, है ना, तो रेडीमेड भी जो मिल रहे हैं उसमें भी दैट इज नॉट क्लियर कि इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। देखिए आप इन टर्म्स को दो तरीके से समझें, एक तो हो गया हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट, एक होगा हमारा अकाउंटिंग वाउचर। सो सोर्स डॉक्यूमेंट इज व्हाट? सोर्स डॉक्यूमेंट इज दैट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अकाउंटिंग वाउचर वुड बी क्रिएटेड। नाउ अकाउंटिंग वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हमने समझना है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट या तो एक रेडीमेड डॉक्यूमेंट है, या फिर एक आपने रफ स्केच तैयार किया है उसका, ठीक है। एंड अकाउंटिंग वाउचर इज व्हाट? अकाउंटिंग वाउचर इज द क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट which contain the debit information, credit information, name of the company, date, who prepared, who authorized, everything it contained in detail, the complete information. Students, is this point clear to you? सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, होपफुली सुन रहे होंगे, होपफुली सुन ही रहे हैं ना? नमन, नतिक, Yes, sir. Yalash, Samrit is not active today, I think. Yes, sir. Listening? Yes. Okay. Thank you. So this accounting voucher is done. Now the vouchers, basically accounting vouchers are categorized in two categories. Accounting vouchers can be categorized in two categories. One is a cash voucher, or second is a non-cash. है ना? Cash and non-cash. So cash refer where the cash transaction is there, whether the case is received or whether the case is paid. है ना? So both would be considered as a cash voucher, or where no involvement of cash is there, that is for the non-cash voucher. है ना? Where the no involvement of cash is there, so that is considered as a non-cash. Okay, this is the two type of vouchers are there. ठीक है? Now let's move ahead, students. हाँ, cash and cash equivalent, actually cash and cash equivalent जो बिल्कुल means what is considered as a equal to cash. ठीक है? Now accounting voucher, sorry, now accounting voucher, you see this debit voucher or credit voucher, these two terms are there. Debit voucher and credit voucher both are the part of credit meant to say not udhar, please to understand, है ना? Debit voucher and the credit, हाँ, it's vertical only. What do you want? Do you want to it? Okay, understood. Is it so? So accounting vouchers, dear students, this we have learned, this we have understood कि accounting voucher are what? The refined source documents, we can say. Accounting vouchers are created with the help of source document. Now accounting vouchers are further categorized in the two way that we have already discussed: cash voucher and non-cash. ठीक है? So accounting vouchers, debit vouchers. Now what does it mean, debit voucher? A voucher which record for a transaction which has two or more debits and the one credit is called the debit voucher.
1 minute. हाँ ठीक है, देखिए डेबिट वाउचर एंड द क्रेडिट वाउचर, व्हाट डज इट मीन? डेबिट वाउचर व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू, है ना, व्हेन वी आर गोइंग टू पे द कैश, means when the case is going out of business and when we are making payment, है ना, when we are making payment then we create debit voucher, है ना, then we create the debit voucher. मतलब कि सीधी सी बात है, आप समझे, आप इस बात को समझें. Just a minute. Devansh, Devansh Garg, are you able to hear me? हाँ देवांश, are you able to hear me? यस सर। बेटा आप हमेशा, है ना, पहली बात तो लेट ज्वाइन करते हो और फिर उसके बाद में आप कॉल करते हो बेटा, उसके कारण से ना पूरा स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाता है. सर मैंने पहले ज्वाइन कर रखा था पर मैं लीव हो गया तो उसके बाद आप मेरे को ले नहीं रहे सर। तो नहीं देवांश, आपने ज्वाइन ही नहीं किया अभी तक. सर आज पूछ लो क्लास सर में आप केवल उनसे। हाँ? यस सर मैं था। देवांश नहीं, आप नहीं थे, मैंने आपको एडमिट ही नहीं किया आज. आज कैलाश, कृष्णा, नैतिक, नमन एंड समृति थे. एनीवे, बट डू नॉट कॉल बेटा, ठीक है, वो फिर थोड़ा सा क्या उससे डिस्टरबेंस होता है देवांश, डोंट माइंड इट, है ना. चलिए यस सर। करें कंटिन्यू, क्योंकि है ना वो इतनी सारी स्क्रीन एक साथ ओपन हो जाती तो फिर बड़े कंफ्यूजन होते हैं. एंड दिस थ्योरी एक्चुअली अगर थोड़ा सा पीडीएफ पर प्रॉपर तरीके से विथ सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं तो जल्दी और आसानी से समझ में आ जाती है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग दिस पीडीएफ, अदरवाइज तो आई एम मच मोर कंफर्टेबल ऑन डायरेक्ट मोबाइल को हैंग किया और शुरू क्लास, जस्ट माउंट द मोबाइल एंड स्टार्ट ऑन द बोर्ड. ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे डेबिट वाउचर and credit voucher. So debit voucher and the credit voucher is a part of the cash voucher only. Debit voucher is prepared when we are just making payment, है ना, when we are making payment, मतलब जब हम किसी को रुपए दे रहे हैं, so we will create which voucher? Debit voucher. Suppose I am just paying 5,000 rupees to Devansh. So what will I do? I will prepare a debit voucher, Devansh account debit to cash. Okay, debit credit we are not talking about at this time because we have not learned rules of debits and credit, but we need to understand accounting vouchers are categorized in two ways, है ना, cash voucher and non-cash voucher. Cash vouchers talk about cash transactions and non-cash vouchers talk about non-cash transactions, the transaction which do not involve cash. Non-cash vouchers are also called transfer voucher, है ना. Non-cash vouchers are also called transfer voucher or journal voucher. Journal voucher is also a name of it. Okay, students? हाँ, है ना, with the help of I think कौन सा उसका टैब होता है, फंक्शन की कौन सा होता है? F7 है ना, F6 परचेज के लिए होता है शायद, है ना. यस, गुड, टैली भी है आपके सिलेबस में. Okay, so this is all about, dear students, source document and the voucher. आपके in the reference it is given in the details. एक पूरा chapter उन्होंने दे रखा है. Some specimens are also given in that. Okay, but ultimately it's all about the source document, invoices, bill, जो कि आप generally एक transactions के दौरान receive करते हो या देते हो. आप किसी दुकान पे कुछ खरीदने जाओगे, you will pay, you will receive a bill.
है ना. इफ यू विल आस्क यू विल रिसीव अ बिल. ठीक है. सो अब जैसे you went to a medical store and you have purchased some medicines, then you can get the bill. पर अगर आप किसी सब्जी वाले के पास में गए और आपने उससे 2 किलो एप्पल परचेस किए, so will you get the bill? Obviously not, है ना. शायद नहीं मिलेंगे. अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीद रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर मान लो आपने किसी रेहड़ी वाले से परचेस किया तो शायद वो बिल नहीं दे पाएगा. सो फिर हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक बिल बनाना पड़ेगा उसके लिए, है ना. एक बिल हमने बनाना पड़ेगा, उसमें उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी कि यस वी हैव स्पेंट 500 रुपीज ऑन परचेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और लाइकवाइज. ठीक है. सो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर बेस. Accounting vouchers are actually voucher what is created with the base of the source document, and further based on this we perform the accounting practices, accounting transactions record in the book of accounts. ठीक है students. So if you have any confusions or query in this, let me have the idea so that we can discuss this. अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आप बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं. यस प्लीज, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? ये चैप्टर नंबर 7 है आपकी. वाउचर वाला सर समझ में नहीं आया. हाँ मैं बता देता हूँ, है ना. जस्ट अ मिनट. Yes, I highlight it. You please read it and tell me that what is not clear in this. Basically, this is the accounting voucher. It is having this two type of voucher, the cash voucher and the transfer voucher. Accounting vouchers are basically having the two type, cash voucher and the transfer voucher. Now, two type is a cash voucher and the transfer voucher, or what is also called non-cash. What is also called non-cash voucher. So accounting vouchers हम लोग पढ़ते हैं पहले, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी इसमें. It is a written document prepared on the basis of source document, है ना. It is a written document prepared on the basis of source document or the source voucher, है ना. Source document is also called the source voucher. Hopefully you people know this. Source document or source voucher. So it is written document prepared on the basis of source document or source voucher showing the account debit or credit. ठीक है. अब ये हो गए हमारे अकाउंटिंग वाउचर. एक देखिए स्टूडेंट्स, बड़ा डिफरेंस इसमें इन दोनों में ये है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से हम लोग अकाउंटिंग वाउचर बनाते हैं. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इसको बनाने की जरूरत क्यों होती है? Why we need to prepare? भाई हम जब मेडिकल स्टोर से हमने, है ना, मेडिकल स्टोर से हमने कुछ मेडिसिन परचेस की तो हमें ऑलरेडी एक इनवॉइस मिल गया है, बट फिर भी हमें अकाउंटिंग वाउचर बनाने की जरूरत है. रीजन? नमन, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा टैली वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो थोड़ा सा बताओ इफ यू अंडरस्टैंड दिस. बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं. Am I audible? देखो क्या होता है, समझो आप कि जो हमारे पास में सोर्स डॉक्यूमेंट आते हैं ना बेटा, उसमें ये तो पता होता है कि हमने 200 का XYZ 200 का हमने ये सामान खरीदा है, या 500 रुपीज वी हैव पेड ऑन द पेट्रोल, or 3000 rupees we have paid for this purpose or that purpose. This everything is clear, but it do not contain the information about which account is debited or which account is credited. कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ये इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होती है. इसलिए हमें इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने पड़ते हैं, है ना. हमें अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने पड़ते हैं ताकि ये चीज क्लियर करें हम उसमें कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं और कौन से अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं. That's why we have need to prepare this accounting vouchers. Okay. Sometime the source document is not available, then we have to prepare the source document. जैसा मैंने बताया कि अगर हमने किसी रेहड़ी वाले से एप्पल परचेस किया तो उसका तो बिल मिलेगा नहीं, तो वो फिर हमें बनाना पड़ेगा. ठीक है. तो अकाउंटिंग वाउचर्स में आ गए अपन. नाउ अकाउंटिंग वाउचर्स, accounting voucher is having the two category, cash
एंड नॉन कैश, जिसको कि हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। अभी आप देखो इसको, ट्रांसफर वाउचर को अगर आप देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ पर कि ट्रांसफर वाउचर क्या है। So transfer voucher are used for recording the non-cash transaction like goods return, both return inwards, return outward, adjustment entry। मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें केस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब ना तो कैश का इनफ्लो है ना कैश का आउटफ्लो है, ना तो कैश बिजनेस में आ रहा है ना कैश बिजनेस से जा रहा है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। So such transactions are called non-cash transactions. So we prepare the non-cash voucher और we prepare the transfer voucher। ठीक है। अब कैश किसी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो वहां पर दो चीजें हो सकती है भाई, या तो कैश बिजनेस में आ रहा होगा या फिर कैश बिजनेस से जाएगा। ठीक है। सो व्हेन वी आर मेकिंग पेमेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड, व्हेन वी आर मेकिंग पेमेंट, जब हम पेमेंट कर रहे हैं, then we will prepare the debit voucher. Debit voucher is prepared when the payment is made. हम किसी को पैसे देंगे ना, हम अगर पे कर रहे हैं तो किसी को दे रहे होंगे, हम राम को पे करेंगे, हम श्याम को पे करेंगे, अपन एबीसी लिमिटेड को पे कर रहे हैं, अपन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को पे कर रहे हैं, हम हमारे जो लैंडलॉर्ड है उसको पे कर रहे हैं, या फिर हमारा जो एम्प्लॉई है जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं, सपोज से एडवांस पे कर रहे हैं, हम उसको पे कर रहे हैं, देन वी वुड बी डेबिटिंग समवन। ठीक है ना। So this would be debited, all right. And on other side, credit voucher is prepared when the case is received. Means when we are receiving something. Okay, all right. We are receiving cash. So somebody would be giving. Who is giving us cash? Maybe Ram, maybe Shyam, maybe Mohan, maybe receiving the money from the debtors. Maybe our tenant is paying the rent, or maybe something else. Okay, so that is all about cash voucher, debit voucher, credit voucher, and transfer voucher. Yes, please. Now the class is about to disconnect. So before this, I just wanted to verify from all the students, Devansh, Kailash, Krishna, Natik, Naman, Samrit. Yes, do you have any doubts in this, students? No, sir. Any questions or query? अभी किसने, नैतिक ने पूछा था, किसने पूछा था कि सर डेबिट वाउचर क्लियर नहीं हुआ है? सर मैंने सर, कैलाश। अच्छा कैलाश, ओके कैलाश बेटा, क्लियर इट इज, समझ में आ गया? ओके ओके। और किसी को कोई क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेरी हैं तो देखिए उसमें एक्चुअली मींस in your reference it is given in the details because they have also include the specimens, है ना। स्पेसिमेन की अगर हम बैंक में रुपए डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो किस तरह का वाउचर होता है ना। अगर मान लीजिए हम सैलरी, किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं या एडवांस दे रहे हैं तो हम कैसा वाउचर बनाएंगे, ये सारी कोई प्रिपरेशन ऑफ वाउचर इज आल्सो देयर इन दैट, है ना। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर इज आल्सो देयर इन दैट, बट प्रिपरेशन ऑफ वाउचर इज डिफरेंट इन कंपनी टू कंपनी। प्लीज डू अंडरस्टैंड एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, है ना। वाउचर्स जो हैं, वाउचर्स कुछ भी नहीं है, वो केवल एक एविडेंस है, वो केवल एक प्रूफ है, जिससे कि ये वेरीफाई होता है कि रुपए कहाँ पर खर्च हुए, रुपए कहाँ से मिले हैं, किसने दिए हैं, किसको दिए हैं, एंड सम मोर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड। व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड? नेम ऑफ द कंपनी, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शंस, which account is debited, which account is credited. Okay, now beside this any other description or details needed? मतलब अगर जरूरी नहीं है कि कैलाश का बिजनेस है तो कैलाश अपने हिसाब से अपनी कंपनी के वाउचर्स डिजाइन कर सकते हैं, है ना। नैतिक का बिजनेस है तो नैतिक अपने हिसाब से उनके वाउचर्स डिजाइन कर सकते हैं। सो इट कैन बी डिफरेंट, बट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? इट मस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन, बिकॉज हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो पूरा सब्जेक्ट ही इसी पर बेस्ड है, दैट इज अबाउट गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो अगर हम कोई वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट या डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर या ट्रांसफर वाउचर हम क्रिएट कर रहे हैं और उसमें हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, वी आर नॉट गेटिंग द इंफॉर्मेशन कि कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगा, है ना। सो द ओनली पर्पस इज व्हाट? दैट it must provide the necessary informations to the accountant so that further it can be recorded either debit or in credited to the XYZ account for the further proceeding. Hopefully this is clear to all. If you have any questions in this, you can ask.
Everybody is clear? Then from tomorrow we would be starting, है ना? अच्छा इस हाँ ये मैं आपकी बुक में से बता देता हूँ. रेफरेंस में चैप्टर नंबर 7 है ना? तो इसमें से बेटा ये 1 या 2 नंबर के लिए या मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए असेस हो सकता है एग्जाम में, है ना? 1 मार्क के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैश मेमो. तो इसके जो लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, है ना? आई जस्ट ट्राई टू हाईलाइट दिस. ठीक है, होपफुली दिस इज विजिबल टू यू पीपल. इज इट विजिबल? है ना? तो ये जो लास्ट में जो दे रखा है हमें, है ना, ये स्पेसिमेंस की जरूरत नहीं है, स्पेसिमेंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जैसे कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश. कैश मेमो इज सोर्स वाउचर और परचेस ऑफ गुड्स. कैश मेमो इज अ सोर्स वाउचर और सोर्स वाउचर फॉर परचेस ऑफ गुड्स इन कैश. अगर कैश में खरीदा है तो कैश मेमो बनेगा, क्रेडिट में है तो क्रेडिट मेमो बनेगा. इनवाइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर ऑफ गुड्स, लाइक दिस. तो ये इनको आपको स्टडी करना है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमें पता होना चाहिए कि क्रेडिट वाउचर आर द डॉक्यूमेंट्स एविडेंस ऑफ द कैश पेमेंट. क्रेडिट वाउचर, यस, क्रेडिट वाउचर, ट्रू और फॉल्स? कैन यू टेल मी whether true or false? Credit voucher are the document evidences of the cash payment. नहीं, क्रेडिट वाउचर हम लोग कब बनाते हैं? जब हमें रुपए मिलते हैं. When we are receiving the money, that time we create. अगली पार्टी को क्रेडिट करने के लिए हम लोग क्रेडिट वाउचर बनाते हैं और अगली पार्टी को डेबिट करने के लिए हम लोग डेबिट वाउचर बनाते हैं, है ना? सो दिस इज फॉल्स. ठीक है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि डेबिट वाउचर विल बी प्रिपेयर फॉर द पेमेंट एंड द क्रेडिट वाउचर फॉर डेबिट वाउचर वुड बी प्रिपेयर टू पे एंड द क्रेडिट वाउचर वुड बी प्रिपेयर टू रिसीव. ठीक है ना? सेकंड आता है जिस हाँ ठीक है, इसीलिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ. थैंक यू अमन, है ना? तो ये जो क्वेश्चंस है इनको आप देखें, है ना, whether you are able to do this or not, है ना? This is only there. Then from tomorrow we would be starting the accounting equation. The next topic we would be starting, that is accounting equation. That is chapter number 5 in your reference. Okay, any questions from anyone? No sir. Okay, so please go through these questions. ये एक बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, आपकी बुक में ही दे रखा है ऑलरेडी, तो बस इसी की प्रैक्टिस करें. That is more than enough. No other practice material is needed for it. That is sufficient. Whether the answer